Hello everyone, class 5, chapter 3, tasting to digesting, and part 3, page number 24. We have made 2 videos of that chapter. Now this is the third video, and in this concerned video we are going to have these 2 questions that are left from here. And the first question is like this: use a clean cloth to wipe द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग। आपको अपने टंग का ये फ्रंट पार्ट क्लीन करना है, बिकॉज हम जो खाना खाते हैं वो हमारे टंग में जो बर्ड्स होते हैं उसके अंदर चला जाता है, और जिससे हमें जो टेस्ट, एक्चुअल टेस्ट था ना, वो नहीं मिल पाता कई बार। एंड पुट सम शुगर एंड जैगरी हियर। यहाँ पर आप बिल्कुल क्लीन करना और फिर इसका टेस्ट लेकर देखना, एंड दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द टेस्ट दैट यू हैव अर्लियर। सो let me tell you one more thing. Stand in the front of mirror and look closely at your tongue. आप अपनी टंग को क्लोज करके देखना, स्मॉल आपको दिखाई देंगे बर्ड्स एंड टिनी बम्प्स, जो कि हमको टेस्ट को आइडेंटिफाई कराते हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग यूजली फॉर द टेस्ट स्वीट टेस्ट के लिए होता है, और ये जो बम्प्स हैं ये हमको आइडेंटिफाई कराते हैं टेस्ट का। लेट अस सी विद दिस पिक्चर हाउ टू क्लीन। टेक आउट द टंग एंड you have seen in washroom there is a tongue cleaner that your parents might have used. Take the tongue cleaner and clean it. While you are cleaning with a cloth, remember the cloth should be very clean and white, and clean your tongue very oftenly in the morning. It is very necessary. As you are brushing your teeth, it is very important to clean your tongue also. Now see this, have a drink of have a taste of water. It will be very delighted to you. You can experience the taste of water also. Now I am telling you how your tongue shows to you when you look closer from a mirror. जब आप मिरर में अपनी टंग देखोगे तो कुछ ऐसी दिखाई देगी. It will become red dots होंगे, जो कि टिनी बम्प्स होंगे. You can see here also. You can see yours also. सो ये आपके जो लिटिल बम्प्स हैं वो हमको आइडेंटिफाई कराते हैं टेस्ट का. First question, if someone asks you to describe the taste of आंवला cucumber, you might find it difficult to explain. आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा. कैन यू एक्सप्लेन द टेस्ट ऑफ आंवला एंड कुकुम्बर, बिकॉज कुकुम्बर वी कैन हैव इन सैलेड पर्पज, सो इट वुड बिकम स्लाइटली बिटर एंड आंवला स्लाइटली सोर. सो दीज आर द टेस्ट ऑफ आंवला एंड कुकुम्बर. If we move forward, we can see the second question. How would you describe the taste of tomato, onion, saunf and garlic? They are commonly used in our household. Let us see the taste of these spices. If we look, amla slightly sour, that we have used in pickle also. Cucumber slightly bitter, used in salad. Tomato sweet and tangy. Onion tangy and hot, used in when we making vegetable. The tadka was prepared only by the onions. Soft, sweet taste, because after having meal in restaurants there we have soap covered with sweet coated. And garlic sharp and hot, that meanwhile used in the kitchen also. In next question we have seen, think of words that you know or use up your own words to describe a taste.
आप कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हो एक टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए? वाइल वी हैव सम फूड वी कैन से इट इज़ डिलीशियस, इट इज़ टेंगी, इट इज़ हार्श, एसिडिक, स्मैक, स्वीट, शार्प, स्पाइसी, हॉट, delicious. These kind of word we are using nowadays for describing any kind of food that we have. So we can make the use of these word while describing a particular dish. When Jampa tasted some of the things, she said she. It means a lot of spicy thing she had before. तो जो स्पाइसी शार्प हॉट चीज़ें खाते हैं उनकी जो जीभ है, जो टंग है, अफेक्ट करती है इवन डाइजेस्टिव सिस्टम और फूड पाइप ऑल्सो. व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन? उसने क्या खाया होगा? अब शी वो बोल रही है स्पाइसी चीज़ ही खाई होगी, तो इसका आंसर स्पाइसी फूड हो सकता है. नेक्स्ट, व्हाई डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम मोर टेस्ट? आप क्यों नहीं अब साउंड यू हैव टू एलिब्रेट द साउंड्स. हाउ योर मूड स्विंग्स व्हेन यू ईट स्वीट थिंग्स. वाओ. हाउ योर मूड स्विंग्स व्हेन यू ईट बिटर. You say different kind of words, you use different kind of pronunciation of words that maybe not bad as the food. So better you use to have all kind of food that are helpful to your body, I'm saying. Chew it or chew it well. What is the difference? चबाकर खाना और अच्छे से चबाकर खाना, क्या मतलब होता है इनका? ट्राई दिस टुगेदर इन द क्लास. सो एक सिंपल सी दिखने वाली चीज़ है कि च्वी इट और च्वी इट वेल, चबाकर खाओ और अच्छे से चबाकर खाओ. डिफरेंस क्या है? आपको शायद डिफरेंस ना दिखाई दे, बट इट साउंड्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. यू हैव टू डू दिस in the class. Each of you take a piece of bread or roti or some cooked rice. Put it in your mouth, chew 3 or 4 times and swallow it. Did the taste change as you chew it? It means आपको बच्चों जो खाना मिला है उसको 2 तरीके से करना. एक बार तो कम चबाना and swallow, एक बार अच्छे से चबाना, मेक ए टेस्ट ऑफ द फूड, देन यू गेट द डिफरेंस. श्योरली यू विल गेट द डिफरेंस. द बॉय इज डूइंग द सेम थिंग. आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा टेस्ट में. यू नो द फ्लेवर, यू नो द टेस्ट ऑफ द फूड दैट यू आर ईटिंग. नाउ यू हैव टू डिस्कस. Has anyone at home told you to eat slowly and chew well so that the food digests properly? Why do you think they say this? क्या कभी आपके घर में किसी ने कहा है कि आप अच्छे से चबाओ? Yes, your parent might have said that. आपके पेरेंट्स ने कहा होगा. Maybe your teacher told the same thing. आपके टीचर ने भी यही बात कही होगी कि अच्छे से खाओ पहले, फोकस ऑन योर फूड, डोंट टॉक व्हाइल यू आर ईटिंग, हैव हैंड वॉश. दीज आर द कॉमन हाइजीनिक थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो. इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक ग्रीन गुआवा, अमरूद खा रहे हो आप. व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इन योर माउथ टू व्हेन यू स्वेलो इट. आपको क्या क्या टेस्ट पता लगेगा? यू जस्ट ईट इट एंड ऑब्जर्व द टेस्ट. नाउ मेन क्वेश्चन, थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन योर माउथ डू? आपके माउथ में सलाइवा क्या करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो सलाइवा है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. Saliva will discuss about saliva and digestive system in our
next video. Now we have completed till page number 26. Thank you.